اور مستقبل بھی ضائع کیا۔ اس طرح 2020 میں حکومت نے وعدے کیے تھے کہ یہ سال لوگوں کو نوکریاں دینے کا سال ہے اور کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا۔ وفاقی منسٹر نے بارہا چینل پر بیٹھ کر اعلانات کیے تھے کہ نوکریاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ لوگ نہیں ملیں گے، لیکن 2020 میں بدقسمتی ہے کہ 35 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اور جن کے ساتھ روزگار تھا حکومت نے وہ بھی ان سے چھین لی۔ اور اس کا بڑا ثبوت خود پاکستان کے سب سے بڑے ادارے اسٹیل مل کا ادارہ اسٹیل مل کراچی ہے، جہاں 4500 سے زیادہ لوگ یک جنبش قلم کے ساتھ ملازمت سے فارغ کیے گئے، اور اب وہ چوکوں اور چوراہوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ اور اس طرح 2020 میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ 2020 میں صنعتی یونٹس بند ہو گئے، اور جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیسہ تھا حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے وہ پیسہ لے کر باہر چلے گئے، اور صنعتی مزدور بھی بے روزگار ہو گیا۔ 2020 پاکستان کی زراعت کے لیے ایک تباہ کن سال رہا۔ کاشتکار اور دہقان بہت مشکل سے دوچار ہوا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، کھاد کی قیمت میں اضافہ، بیج کے قیمتوں میں اضافہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا مافیا مارکیٹ پہ مسلط کیا گیا جس نے غریب کاشتکار کی محنت کو، ان کے خون پسینے کا استحصال کیا، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں اگر کسی نے ترقی کی ہے تو وزراء اور مشیروں کے علاوہ مافیاز نے ترقی کی۔ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا اور چینی مافیا، آٹا مافیا، تیل مافیا، اور ان مافیاز نے خود وفاقی حکومت پر بھی قبضہ کیا ہے، صوبائی حکومتوں پہ بھی قبضہ کیا ہے، اور اس حکومت نے یو ٹرن نہیں بلکہ میگا یو ٹرن لے کر تاریخ کی بدترین جھوٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاسی ماحول میں بھی پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں رہی، ہاسپٹل میں علاج کا انتظام نہیں تھا، اور اسمبلی جس پر قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایوانوں میں قانون سازی کی بجائے گالی اور گلوچ ہی قوم سنتی رہی، اور عوام کے فائدے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے عوام کی نمائندگی کی، اور ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، مافیاز کی حکومت کے خلاف ہم نے احتجاجی مہم شروع کی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی جلسے جاری ہیں۔ پہلا جلسہ ہم نے گجرانوالہ میں کیا، اور اگلا جلسہ ہمارا سرگودا میں ہے، اور اس کے بعد فیصل آباد میں ہوگا، اور اس طرح انشاءاللہ ہماری یہ احتجاجی مہم اس ظلم کے نظام کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ میں اپنی قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ کو، پرویز مشرف اور جرنیلوں کی حکومتوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ان تمام حکومتوں نے تاج برطانیہ کی وفاداری کی ہے، ان کا نظام مسلط رکھا ہے، اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اسی نظام کو برقرار رکھنا تھا جس کے خلاف قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اتنی بڑی جدوجہد، مہم اور قربانی دی گئی، تو پھر انگریز کو یہاں بگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ لیکن ان حکمرانوں نے جو کہ تو اسی نظام کو مسلط رکھا، جس کی وجہ سے ہمارا جغرافیہ بھی تباہ ہو گیا، پاکستان بھی دو لخت ہوا، اور جس کی وجہ سے ہم دوبارہ
वर्ल्ड बैंक और IMF के मकरूज बन गए और अभी भी IMF के नुमाइंदगान इस्लामाबाद में मौजूद है और उनका दबाव है बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, खुराक की चीज़ों की कीमतों में इजाफा, और वो यही चाहते हैं कि हुकूमत का कोई और काम ही ना हो, बस लोगों के जेबों पर हाथ रखना और लोगों के गर्दनों पर पांव रखना और लोगों के गर्दनों को मरोड़ना। ये निज़ाम जो आज का है ये उन्हीं पार्टियों का एक तसलसल है। PTI और PDM के पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं है। अमरीकी ग़ुलामी पर राज़ी है, IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने पर राज़ी है, कश्मीर के हवालागी इस पर राज़ी है, तालीमी पॉलिसी, माशी पॉलिसी, ज़री पॉलिसी, सनती पॉलिसी, इस पर यह राज़ी है आपस में। इसलिए कि तमाम पार्टियां जागीरदारों और सरमायादारों के क्लब है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं जालिम जागीरदार के फ़ायदे के लिए और करप्ट सरमायादार के फ़ायदे के लिए फैसले करती हैं और पॉलिसियाँ बनाती है। जमात इस्लामी गरीब आवाम का और पाकिस्तानी आवाम का एक तर्जुमान जमात है। इसलिए इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि हमारे तमाम मसाइल का हल इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम है, जिसके खातिर ये पाकिस्तान बना था, जिसके खातिर करोड़ों लोगों ने जद्दोजहद की थी, जिसके खातिर लाखों लोग शहीद हो गए। जमात इस्लामी आएगी तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला अदालती निज़ाम बनेगा। जमात इस्लामी आएगी तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा, सूदी निज़ाम का खात्मा, सर्कुलेशन ऑफ मनी और ज़कात और उशर का निज़ाम नाफिज होगा। जमात इस्लामी आएगी तो कश्मीर की आज़ादी के लिए हम फैसला कुन और नतीजा खेज इक़दामात करेंगे। जमात इस्लामी आएगी तो गरीब और अमीर के लिए हम यकसा निज़ामी तालीम देंगे। जमात इस्लामी आएगी तो हर गरीब के इलाज का इंतज़ाम और अदालतों में हर मजलूम के वकालत का इंतज़ाम ये हुकूमत करेगी। एक वेलफेयर इस्लामी पाकिस्तान की तामीर जमात इस्लामी का नस्बुलैन है और मैं अवाम से यही अपील करता हूँ कि आइंदा इन लोगों के सियासत में न पनसना। इन्होंने आपकी इज्जत को, आपके हाल को, आपके मुस्तकबिल को तबाह किया है। अब एक ही प्लेटफॉर्म है जमात इस्लामी का जो इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रही है। हर लम्हे में जमात ने आपकी खिदमत की है। कोरोना वायरस के वबा के दौरान 1 लाख कारकुनान ने आपकी खिदमत की है। जलजला सैलाब के दौरान हमेशा जमात इस्लामी ने आपकी खिदमत की है। करप्शन से एक पाक जमात, दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ हम मैदानी सियासत में मौजूद है और आपकी ताउन का और आपके वोट और सपोर्ट का जमात इस्लामी ही हकदार है। बहुत शुक्रिया। सराजुल्लाह साहब, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो उनमें जमात इस्लामी का क्या किरदार होगा? क्या वो PTI के साथ खड़ी होगी? और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का 16 फरवरी को पासपोर्ट भी मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस देखिए, सेनेट का भी फैसला नहीं हुआ है, अदालत में है मसला। खुद हुकूमत ने अदालत की तरफ रुजू की है कि हम कौन सा तरीक़ा इख्तियार करें, तो अभी हुकूमत भी यकसू नहीं है। बाकी रही बात नवाज शरीफ के और पासपोर्ट का, नवाज शरीफ पाकिस्तान का शहरी है और किसी शहरी को अपनी शहरियत से महरूम करना, पासपोर्ट ज़ब्त करना, ये मैं जायज़ नहीं समझ रहा हूँ। आज अगर इस हुकूमत ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल किया तो कल किसी और सियासतदान के साथ भी ये कर सकती है। और आज जो कुछ PTI अपोजिशन के साथ कर रही है कल यही कुछ उनके साथ भी होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देता है और बढ़ता जा रहा है और वो इंशाल्लाह कोई न कोई असर जरूर दिखाएगा। शुरू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि ये साल नौकरियों का साल होगा।
हाँ ये बताइएगा कि अब तक वफाकी हुकूमत ने सिंध से कितने लोगों को नौकरियां दी, बयान के तहत 2020 अब ये कहा कि आज कहा है कि 2021 तरक्की का साल होगा, तो आप आपने भी अखबारें पढ़ी और मैंने भी अखबारें पढ़ी। हमारे मेंबरान कौमी असेंबली इसी बात पे लड़ते रहे कि सिंध की कोटा मिल क्यों नहीं रही, नौकरियों पर से पाबंदी खत्म होती क्यों नहीं, क्यों मरकजी महकमा जाती इख्तियारात नहीं आते कि आप फलां जगह पे अप्लाई कर सकते हो, फलां जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ये हुकूमत ऐलान क्यों नहीं कर पाई कि जी हमने सूबों को इतने इतने मुलाजमतें दी। हम इसी का तो ही बात कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ हमारे हकूक पर डाका डाले हुए है। अब आया कौन है? काफी मायूं मिल चुकी है, थोड़ा बहुत आपके पास लिखा हुआ, तो फिर इनकी खातिर तवाज़ा करो, उठो। नहीं वहाँ बारह का ये मुतालबा है और मुख्तलिफ इलाकों से पॉपुलेशन बढ़ने पर वहाँ की जो टाउन कमेटीज हैं वो अपने आप को ये म्यूनिसिपैलिटीज कराने की कोशिश भी कर रही हैं। कहीं यूनियन काउंसिल है तो वो अपने आप को टाउन कमेटी कराने की कोशिश कर रही है। हमने अगर कोरंगी का जिला बना दिया तो इसी तरह से बाडराय को भी तहसील का हिस्सा दिला सकते हैं और अभी उसमें टाइम है, अभी कोई इलेक्शन भी नहीं आ रहा और ये हमारे जहन में है कि हम उसका भी कुछ न कुछ तदारक करेंगे। थैंक यू।